So, hello everyone. Hello. Hello. Uh, Hello, bro. I have a. First of all, congratulations for your rank. I have a doubt, Mm, bro. Recording my okay, drop here. okay. I am You can belongs ask. to. Am I audible? Yeah, yeah, you are audible. Yeah, brother. Actually, I am belongs to the. I have done my graduation in ECE, but I am Mm, interested in DSA, okay. in machine learning and those subjects. And Yeah. I have completed subjects linear algebra, probability, calculus, and Python as well, and Mm-hmm. AI also. And my plan is to complete my whole subject before by the end of the July. I am not doing any revision while watching the lectures. My plan is to do the revision and give the tests uh, after the July month. Is it a better Okay. plan or should I change anything in this? See, so I have done the same mistakes also that you are currently doing because you should revise your subjects. And I have already told many people that you should revise with your preparation with your lectures also because after when you finish your syllabus, when you will start your revision from the scratch, it will take you much more time. It will take you a lot of time. Means I think 2 3 months it will take. It can easily take. So you should focus on revision and your lecture coverage also. So see, if you're trying to cover, if you're trying to cover the whole syllabus till July, means I think not much of the syllabus is remaining. Am I correct? Yeah. Yes. Okay. So if not much syllabus is remaining, so I think you have enough time. Means you can extend your lectures till 1 2 months also means you can cover your syllabus till September. That's not a problem. But you should revise your subjects also. Yeah. The remaining subjects are there for me is ML, algorithm, and DBMS. Yeah. So you are preparing for DA, na? Yeah. 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 Yes, bro. Okay. 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 No problem. You can with revision also you can cover the lectures and uh, complete the syllabus till September. It does not matter because after that also you will have December, January, December, sorry, November, December, January, 3 months. 3 months is enough for the revision and mock test. Okay. Uh, in between of listening the lecture, should I give weekly quizzes or should I give that quizzes when I'm giving the mock test only? See, treat weekly quizzes as your practice questions. Means what you do. Okay. If you used to study any topic, then try to give the weekly quiz of that topic so that uh, those questions you can you will be able to solve because weekly quiz questions are a bit difficult as you will when you will solve you will get to know okay, it is difficult than the gate questions. Yeah. Okay, Yeah. any other doubt? Yeah. No, bro. Thank you. Okay, thank you. Yeah. uh, Thank you, brother. Sonam has a doubt. I saw your interview, sir. You said you began your preparation mark and it was your drop year. How much hours did you study and how you was flow of giving the test weekly to and topic wise? See, uh, how many hours did I study? Uh, actually, I did not remember exactly that how many hours I used to study. But daily, I used to make a target. I have to complete this much of lectures. I have to solve these questions. I have to solve this PYQ and all. And daily, I try to uh, get the target completed so that at the end of the day, so someday I used to take 2 hours, someday I used to take 10 hours. So on an average, if you will count, I would say 6 to 7 hours a daily I used to study on my preparation. And what is the how you was the flow of giving the test? See, I used to give the weekly quizzes, topic-wise tests. I used to treat them as a practice questions, means I don't used to solve any other DPP and all. I used to just give the and weekly quizzes and topic-wise tests. And
I did not solve all the weekly quizzes. It is not possible for me also. Ki I was able to solve all the weekly quizzes. It was just like every subject have, I think, 7 or 8 weekly quizzes. Out of that 7 or 8 quizzes, I was able to solve, I think, 2, 3, 4, 5, maybe some subject 4, 5. So like that also. My main focus was on PYQs. I used to solve PYQ a lot. I have solved all the last 15 years of PYQ, I think, more than uh, 2, 3 times, around 2, 3 times. So if anyone want to speak, he can raise your hand. You can raise your hand or write your doubt in the chat so that I can answer your doubt. Okay, sir. You did topic wise test simultaneously. Uh, no, I think I did not do topic wise test simultaneously. Uh, but you should give the topic wise test also because it will help you a lot in the revision of the previous subjects also. You should give multiple subject tests also so that uh, you will get used to of solving the different subject questions at the same time. I am doing weekly quizzes, but topic wise tests, subject wise, can I keep up it? Uh, yes, you can solve it later also. Because what you try to do is, okay, first you plan your preparation means at what time you will cover your whole syllabus means your target should be till October. Ki I will cover my syllabus till October, and after that I will revise. In the revision phase, you can solve all those topic-wise tests, subject-wise tests. But if you are getting time to solve the topic-wise test right now, you should do it right now because what I have done in my preparation key. What I used to do, I used to think when I will complete my whole syllabus, when I will complete my syllabus, I will give all my tests, give all the topic wise tests, all the subject wise tests. But it is not possible because after revision, but after completing your syllabus, you have lots of other things to do. Like you have to revise also, you have to solve the PYQs also, you have to give them mock test also, you have to analyze the mock test. So you will not get much time to solve the topic wise test, subject wise test. So if you're getting the time right now, then you should go for it. You should solve the topic wise test, you should solve the subject wise test. See, what I'm saying, uh, what is the point of saying this? Ki you should treat the all the questions that are in the weekly quizzes and in the topic wise test as a practice question because uh, those are your practice questions. So if you will solve more questions, you will be more comfortable in any particular subject, in any particular topic. So you can do like that. Hello, can you please suggest a revision strategy after complete 2, 3 subject? How you make sure that all the concept of the previous subjects are not forgotten? See, when you study some topics for the first time, or then you will be able to solve any topic. Sorry, then you will able to solve any question of that topic easily. Or if some question is tough, then you will at least you will try to say means you will try to make some analogy, or you will try to make some concept. You will be able to understand that question. But after some time, when you will try to solve the same question, you are not able to solve. So revision strategy, what you are asking to me, I would recommend you ki you should study the same topic, not study, you should revise the same topic again and again for the 2, 3 times so that it will you will get very comfortable with those topics. It is not possible that you will study some topic and you will remember it for your whole preparation. It is not possible. Same topic you have to revise it for 2, 3 times constantly. Means after when you will complete your whole syllabus, you will have to revise it constantly. Means subject by subject, one subject and after another subject. You have to make plan of it. So so through this you will be able to do that. Uh, Anuj Pratap Singh.
Sir, I have a doubt regarding GATE CSC preparation. I am currently in the beginning of my fourth year and studying from Go classes. During my first 3 years, I neither studied DSA nor did much web development seriously. Will solving DSA problems on lead code help in GATE preparation? Since I have not done DSA before, should I invest time in lead code now or focus on all subjects required for GATE? Will not doing DSA practice affect my GATE rank? See, if you have already done the lead code problem, then it will help you in the gate preparation because you can easily understand the recursion and all. But right now, if you're uh, thinking कि I will solve lead code problem and it will help in my gate preparation, I would not recommend that because uh, solving any lead code problem and solving a gate problem is totally two different things. Uh, in uh, in lead code problems, what you have to do, you have to think the logic of it. And in gate problem, there is a set of problems, and you have to solve just those set of problems. There are some limited problems, and you have to solve those limited problems only. But in lead code, you will get a new question every time you will get try to solve the new question. So currently, I would not recommend you to go for the lead code. You should go for your complete gate preparation, and you will easily you can easily do it. Yeah. Hello, sir. How many months did you spend for total preparation uh, and revision? Uh, I think 10 to 11 months of preparation I had given for the gate. I started from March and March till November. Sorry, March till February. Okay. If anyone wants to unmute his mic and ask him doubt, he can ask. Hello. Hello. I want to ask how much time we should dedicate to particular subject. मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वही शुरू है वही पढ़े जा रहे हैं टाइम भी जा रहा तो हाँ, तो जैसे सारे सब्जेक्ट्स मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे बड़े बड़े हैं जैसे कि हमारा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, टीओसी एंड डीबीएमएस। तो आपको इसमें तो टाइम देना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप अगर आपको डीबीएमएस अच्छा लग रहा है तो आप बस डीबीएमएस से पढ़े जा रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी है क्योंकि हर सब्जेक्ट मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट है। डीबीएमएस डीबीएमएस से भी आपके 7 से 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, टीओसी से भी 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो एवरी सब्जेक्ट एज ए ओन वेटेज। तो आपको हर हर टाइम को मतलब आपको अपना टाइम डिवाइड करना है कि मेरे को अगर जैसे डीबीएमएस बड़ा सब्जेक्ट है तो मुझे इसमें 1.5 महीने लगेंगे। अगर मेरा टीओसी बड़ा सब्जेक्ट है तो उसमें मेरे को 1.5 से 2 महीने लगेंगे। तो ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो अपने टाइम को ताकि आप उसको मतलब ज्यादा ना पढ़ने लगो। So actually I have like the fundamental knowledge of all the subjects. Like I gave GATE in my third year also, so now it's my fourth year. हम्म। Also, like I am a diploma student, so already I have studied all these things in my diploma now in college also. So हम्म। अभी ऐसे पढ़ने जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि all these things I know already, but हम्म। question solve नहीं हो रहे, तो ऐसा अच्छा, प्रॉब्लम। क्वेश्चन सॉल्व मतलब कि सबसे पहली बात तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज होती है, वो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है कि अगर कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो कौन से टॉपिक का है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी क्या। क्वेश्चंस आई कैन सॉल्व, बट जब हम्म। एकदम ही एकदम ही डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है तो वो सॉल्व नहीं हो रहा। एंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो जैसे कोई वीडियो सर के, जैसे गो क्लासेस के वीडियोस, इफ आई स्टार्ट टू हम्म। वॉच देम इट्स लाइक कि ये सब तो पता ही है ऑलरेडी, तो हम्म। फिर वीडियो देख के टाइम वेस्ट होएगा। हाँ मतलब एक बात सही है। जैसे अगर टफ क्वेश्चन क्या होता है ना कि टफ क्वेश्चन मतलब पहली बार में किसी सॉल्व नहीं होता। मुझसे भी मतलब टफ क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मतलब पहली बार में, हाँ हो सकता है मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बट ज्यादातर क्वेश्चन टफ टफ क्वेश्चन पहली बार सॉल्व नहीं होते। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे पहली बार सॉल्व नहीं हुआ
तो आप अगर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको दोबारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होना चाहिए। कि मतलब कि पहला क्वेश्चन, पहली बार जब क्वेश्चन सॉल्व किया और आपसे नहीं हुआ तो आप उसको मतलब अच्छे से समझो, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कैसे मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ताकि आप उसको अगर सेम क्वेश्चन आप नेक्स्ट बार करो तो वो दोबारा आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। सी, गेट में क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब किसी भी टॉपिक से आप ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन बना दोगे, है ना। तो जब क्वेश्चन से लिमिटेड है तो आप दोबारा मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। और आपको भी पता है कि लास्ट 15 अगर जैसे पीवाईक्यू अगर उठा के आप देख लो, तो जितने भी क्वेश्चन मतलब हर साल जो पेपर बनता है ऑलमोस्ट 60% ऑफ द क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं। कि या तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, या तो सिमिलर, या तो न्यूमेरिकल चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। हेलो। ओके, थैंक यू। ओके। Arjeet Karan, I am preparing for GATE DA. By when should our theory be over and by when should we start giving marks? See, I have told already कि ideal time of completing the syllabus is October. So after that October, you will have 3 months, November, December, January. And in those 3 months, you can easily revise all the things and you have to give, you can do mocks and analysis of it and many other things also. And when should you start giving your mocks? I think when you complete almost 60% of the syllabus, when you will complete your whole 60% of the syllabus, you can start giving mocks after that. Deva, I have a doubt that I am preparing for GATE CSC. After completing lectures of the subjects, have to what I have to sure to complete after completion of lectures? What are the things that I have to do on that subject? Okay, ठीक है. So I think after completing the lectures, first your target should be you try to solve some questions on that particular topic, and after completing that whole subject, any particular subject, let's say TOC. After completing the whole TOC, you try to solve all the PYQs, all 15 year, all 20 year, whatever you want. You try to solve all the PYQs and see how much you are able to solve, how much questions you are able to solve. And if there is some conceptual gap between your conceptual gap in your preparation, then you should make sure that those conceptual gaps should be filled. And through this, you can master any subject. Did you focus totally on GATE or did you manage other things also, like placement or any other? And how many hours did you spend day of lectures and problems? See, I was working for a fintech startup after my BTech got over. So after that, almost 2 3 months after my college, I worked there. But I left my job in March, I think March or April. And after that, I gave my full time for the GATE preparation. So last, I think 8 9 months, I gave fully for the my GATE preparation. And how many hours did you spend daily on the lectures? Okay, for the lectures, I think almost 5 6 hours of lectures daily. That's Pratap Singh. Okay, you can unmute yourself. हेलो। हेलो भैया, आवाज आ रही? हाँ, आ रही आ रही। तो सर बेसिकली मैं अभी, जैसे कि मैं चैट में लिखा था कि मेरा ये फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ है और मैंने हम्म थर्ड ईयर तक कोई भी डीएसए सॉल्व नहीं किया है, ना वेब डेवलपमेंट किया है। तो मैंने हम्म अभी रिसेंटली को क्लासेस का बैच ज्वाइन किया है। तो अभी हम्म मैं करेंटली डीएम और डीएल पैरेलल में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सर हम्म। मुझे ये पूछना है कि मुझे नोट्स बनाना चाहिए कि मुझे एनोटेड नोट से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोट्स मेकिंग में बहुत टाइम लग रहा है। देखो, मतलब कि अगर टाइम भी लग रहा है ना, थोड़ा बहुत तो नोट्स बनाना चाहिए। मतलब कि क्योंकि नोट्स से क्या होता है ना कि नोट्स जो है कि तुम्हारे रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। एनोटेटेड नोट्स तुम्हारे रिवीजन में हेल्प मतलब वैसे नहीं करेगा। मतलब जैसे कि अगर तुम खुद से कोई चीज पढ़ोगे, खुद से कोई चीज लिखते हो ना, तो तुमको ही पता रहता है कि तुमने क्या लिखा हुआ है। अब एनोटेटेड नोट्स में मतलब मतलब पूरा ही लेक्चर ही है कि मतलब जो सर ने पढ़ाया है एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो आप क्या कर सकते हो कि नोट मेकिंग की मतलब सारी चीजें मत लिखो। वो जो छोटे
जुड़े टॉपिक से कि मतलब कोई टॉपिक है तो उसका मतलब कि क्या तुमको लगा कि क्या इस टॉपिक से तुमने सीखा, तुम वो लिख सकते हो। ठीक है, तुम पूरा मतलब लेक्चर कॉपी कॉपी करने की ट्राई मत करो। जैसे अब तुमने क्या कर सकते हो कि जैसे अब तुमने 10 10 15 मिनट पढ़ लिया, लेक्चर देख लिया। अब उसके बाद उस 10 15 मिनट में तुमने क्या क्या सीखा, वो तुम लिख सकते हो। तो उसमें तुम्हारा टाइम भी कम कम लगेगा। लेकिन नोट्स तो बनाओ, मैं कहूँगा। तो ये हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहिए, मतलब शॉर्ट हाँ नोट हैंड टाइप में ही बनाओ, लेकिन लेकिन बनाओ। हाँ हाँ बनाओ, ताकि वो तुम्हारे रिवीजन बहुत काम आएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रिवीजन से ही तुम्हारा मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे, फिर मॉक्स दोगे तुम उसी उसी रिवीजन को कर करके बार बार बार। और ओके भैया, जैसे कि मैं एक मान लीजिए मैं डीएम का 5 लेक्चर देखता हूँ, तो मुझे उसी दिन वो 5 लेक्चर्स को रिवाइज करना चाहिए नोट्स को, कि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही रिवाइज करना चाहिए, मतलब कैसे रिवीजन न- स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? नहीं नहीं, जैसे कि मतलब अब तुमने कोई चीज आज पढ़ी तो आज 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 ही उसको मत रिवाइज। ऐसा कोई वो नहीं है कि आज ही उसको रिवाइज करो, क्योंकि तुम्हारे वो मसल मेमोरी में रहेगा ही कि मतलब तुमने कोई चीज अगर आज पढ़ी है तो वो तुमको आज तुमको रिकॉग्नाइज रहेगा ही। तो क्या कर सकते हो कि जैसे आज तुमने कोई चीज पढ़ा तो हो सकता है तुम उसको एक हफ्ते के अंदर, मतलब आने वाले एक हफ्ते के अंदर कभी कभी उसको एक बार रिवाइज कर लो। वो तुम्हारे दिमाग में फिर रहेगा। और कोई भी चीज है ना कि जैसे तुमको उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब उसके बाद तुम एक दो हफ्ते के उसको रिवाइज नहीं किया तो तुम उसको भूल जाओगे। फिर तुम रिवाइज करोगे, फिर तुम कुछ दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। तो उसको कॉन्स्टेंटली तुमको रिवाइज करते रहना है। ओके भैया। भैया और जैसे डीएसए सॉल्व करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है डीएसए। देखो, अगर तुम्हारा फोकस अगर गेट है ना, तो फिर मैं तो अभी नहीं बोलूंगा कि सॉल्व करो। हाँ देखो, वो हेल्प करता है क्योंकि रिकर्सन और भी मतलब कुछ कुछ टॉपिक समझने में। बट मैं तुमको अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि लीड कोड पे जितने क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मतलब तुमको लॉजिक बनाना पड़ता है कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का। लेकिन तुम्हारे गेट के अंदर तुम्हारे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कि मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से तुम्हारा गेट में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो वो उतना हेल्प नहीं करेगा और तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। ओके भैया, जैसे कि इस साल जो गेट 2026 में सेट 2 में एक एल्बो में क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्ट लीड कोड क्वेश्चन ही था, मुझे याद हाँ नहीं हाँ। है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, डाउट हो रहा है कि मतलब वो ऐसा क्वेश्चन था कि अगर मैं लीड कोड सॉल्व किया होता तभी वो हिट कर पाता उस पॉइंट पे, क्योंकि थोड़ी। नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि जैसे सुनो मेरी बात सुनो, जैसे तुम एक क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। बाकी का जो 98 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके पीछे भागो ना। ओके भैया, ओके, ठीक है क्योंकि सारी चीजें भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुमको सारी चीजें मैनेज करके चलनी है। बस भैया एल्गोरिथम ही नहीं थोड़ी कोई है। डायरेक्ट गेट हाँ पे फोकस करो, हाँ, गेट डायरेक्ट सब्जेक्ट। गेट पे फोकस करो। ओके भैया, थैंक यू। अभिलाषा, अभिलाष सॉरी। फॉर मॉडल 2 and linear algebra, probability and calculus, we don't have many PYQs for DA. So where I can find question for model 2 and solving PYQs for engineering mathematics from CSE enough, or should I consider other branches as well because DA mathematics is heavy? See, I don't have idea about DA, but I know that the mathematics part of DA is a bit heavy as compared to CSE, because in CSE very few topics are there for calculus, and but in DA calculus is a very important topic. So I think you should ask this question to someone else. Uh, Arjit Karan, by limited number of questions, do you mean that style of questions given by gate is fixed, and if we solve the PYQs, a lot of preparation will happen from that only? Yeah. Uh, yes. आप कह सकते हो कि मतलब इट्स लाइक दैट कि देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मींस लिमिटेड set of questions, uh, because there is a pattern that that any question follow, and if you'll understand all the patterns of the question, means this pattern can be solved with this method, and that pattern can be solved with another method. So if you will try to understand all the pattern, if you will understand all the pattern, then you can easily solve all the questions. Like in POC, uh, DFA and FA, means there are 9 or 10 types of questions that are available in the GitPyQs, and you will
see that only those nine types of questions are there in the PYQs, and you can, if you will figure out that which type of question is this, you can easily solve any PYQ. You can easily solve any questions of TOC, any question of DFA and FA or PDA. Okay, so okay, yes, Kasis, you can unmute yourself. Hello, sir. I would like to first congratulate you on your rank. And Thank you. sir, like I have also taken drop like you. So, sir, like drop year में बहुत mixed feelings होती है because I'm also preparing for the first time. So, how was your mindset during the gate preparation, especially during the drop year? क्योंकि नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ and जो भी अपन मोस्टली टॉपर्स देखते हैं वो मतलब उनकी पहले 1000 2000 रैंक आई हुई होती है फिर वो जंप करते हैं सिंगल डिजिट डबल डिजिट पे तो लाइक there are some points in the preparation where we start doubting our decisions and so how did you cope up with it? जब मैंने फोर्थ ईयर में पहली बार गेट दिया था ना, तो मेरा 27 28 मार्क्स आया था। ठीक है, तो वो तो मतलब मैंने ऐसे दे दिया था कि मतलब मुझे मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, बस मेरे को, मैंने पहले से सीपी करता था, डीएसए करता था, लीड कोड करता था, तो मेरे को एल्गोरिथम और डीएसएल पार्ट स्ट्रांग था और एल्गोरिथम स्ट्रांग था, तो मेरे वहीं से जितने मार्क्स आए थे ऐसे। तो जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे पता था कि मतलब मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो डे वन से ही मैं सबसे बोलता था कि मैं सिंगल डिजिट रैंक लेके आऊंगा। मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरा मेंटेलिटी मतलब पहले डे वन से यही था कि मैं सिंगल डिजिट रैंक लेके आऊंगा कुछ भी हो जाए। हालांकि वो नहीं है, बट तो आपको मेंटेलिटी हमेशा मतलब एकदम टॉप की रखनी है कि आप जैसे अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मार्क्स टारगेट करके रखो, मतलब रैंक नहीं, कि आपको 90 प्लस मार्क्स की स्कोर करना है कुछ भी हो जाए। तो 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हर टॉपिक मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज कई कई बार लगाना है। तो अब प्रिपरेशन के बीच में जैसे कि मतलब अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं कि आप कभी लिंक्डइन खोल लो तो आपको लगता है कि हाँ भाई कोई कंपनी स्विच कर रहा है या फिर कोई अच्छी कंपनी में जा रहा है या फिर किसी का इतना रैंक आ रहा है। तो वो सब बहुत चीजें नॉर्मल है, मतलब इतना चीजों का लोड नहीं लेना चाहिए कि कोई और क्या कर रहा है, कोई और क्या सोच रहा है। तो बस आप अपने ऊपर फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है। And sir, like अब उस टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे थे क्या लाइक यू वर लुकिंग फॉर अ प्लेसमेंट ड्यूरिंग द ड्रॉप? मैंने, मेरा प्लेसमेंट लग चुका था, मैं फोर्थ ईयर में जॉब कर रहा था, मेरा 9 LPA का पैकेज लगा हुआ था नोएडा में। तो आपने एक वो छोड़ फिनटेक। हाँ मैंने छोड़ दिया था, मैं वहाँ पे 6 महीने काम किया था फिर छोड़ दिया था वहाँ पे। Okay, so if anybody else want to ask some question? Yes, you can unmute, Anuj. सर जैसे मैंने डीएल में बुलियन अलजेब्रा पढ़ा, हम्म। तो मुझे लगभग 7 दिन में कंप्लीट हो गया। फिर मैं हम्म। डीएम पढ़ रहा था। फिर एक्चुअली मैं 2-3 दिन बाद फिर मैं बुलियन अलजेब्रा जब रिवाइज करने को गया, तो हम्म। मुझे पूरा एक दिन लग गया रिवाइज करने में। तो सर ये नॉर्मल है या मेरे प्रिपरेशन में कुछ मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? देखो जानते हो, मतलब कोई भी अगर तुम सब्जेक्ट ना पहली बार रिवाइज करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब मेरा भी बहुत मतलब ऐसे ही रहा था कि कोई भी टॉपिक अगर मैं पहली बार रिवाइज करने जाऊँ या फिर कोई भी subject पहली बार रिवाइज करने जाऊँ ना, तो मुझे दोबारा से अपने मतलब लेक्चर्स खोल के देखने पड़ते थे कि मतलब मैंने क्या पढ़ा है, मुझे जो मैंने लिखा है मुझे वही पता नहीं है कि मैंने क्या लिख दिया है। तो मैं वहां पे जाता था, दोबारा से दोबारा लेक्चर से देखता था। तो ऐसा भी होता है। तो ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा कोई वो स्ट्रेस नहीं लेना है कि बहुत टाइम लग रहा है रिवीजन में। लेकिन अब तुम जब तुम दोबारा रिवाइज करोगे ना तो फिर चीजें इजी होने लगेगी। ओके भाई, थैंक यू। Was my gate D26 rank is 3000. I prepared for 27. So is my strategy? What is my strategy for top rank? Uh, strategy. I think what's the key point of the gate preparation is this is the consistency. Means you need to do the same boring thing again and again. Watch the lecture, solve the PVQ, solve the questions. Watch the lecture, solve the PVQ, solve the question. So this consistency is a very tough thing. Means daily for for almost 2 to 300 days you have to do the same thing.
So consistency is the only key that you can have in the gate preparation that will get you a top rank. Anybody else? You can ask me anything, यार. If you want to ask something भैया else आपने also. टेस्ट कब से देना स्टार्ट किया था? हाँ, टेस्ट. या टेस्ट टेस्ट मुझे लगता है कि सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था. मैं पहले ना गो क्लास का टेस्ट नहीं देता था. मैं पहले एनपीटीईएल का टेस्ट दिया करता था स्टार्टिंग के एक एक महीने तक. फिर अक्टूबर से मैंने टेस्ट मतलब सीरियसली देना स्टार्ट किया था गो क्लासेस का. क्या? हेलो. तो भैया तो क्या अभी टॉपिक वाइज टेस्ट देना सही रहेगा या नहीं? लाइक अभी जैसे लेक्चर्स कर रहे हैं, फिर पीवाईक्यू, देन वीकली क्विजेस, देन उसके बाद टॉपिक वाइज, तो अभी करना सही रहेगा या फिर एक आइटरेशन पूरा पीवाईक्यू और लेक्चर खत्म कर लूं, उसके बाद एक साथ सारा टेस्ट स्टार्ट करूं? See, मैं क्या बोलूंगा ना कि जितने भी जैसे वीकली क्विजेज है ना, वीकली क्विजेज या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट, तो उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो. कि मतलब वो मतलब बस नॉर्मल क्वेश्चन है तो मतलब उसको बस प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है. उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. लेकिन जो पीवाईक्यूज है उसको मतलब अच्छे से सॉल्व करना है. मतलब जैसे कि हर ऑप्शन अच्छे से उसको एनालाइज करना है कि ये ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, ये ऑप्शन गलत तो गलत क्यों है. तो ऐसे से कर करके ना, जैसे जो पीवाईक्यूज है उसको इम्पोर्टेंस देना है. और जो टॉपिक वाइज टेस्ट है और वीकली क्विज है उसको मतलब ठीक है, मतलब क्वेश्चन है तो है, बस वो सॉल्व करना है, बस देखना है. और जो पीवाईक्यू है उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा, मतलब अच्छे से करोगे तो उसको, क्योंकि तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि पीवाईक्यू तुम एटलीस्ट 2 से 3 बार सॉल्व कर लो लास्ट 3 ईयर एटलीस्ट, लास्ट लास्ट के 15 साल के. ठीक है. हेलो. मतलब एक बार जैसे अभी करेंटली कोई लेक्चर्स देख रहे हैं, कोई मॉड्यूल खत्म हुआ, तो उसके बाद उसके पीवाईक्यू एक बार लगाएंगे, एंड देन कुछ टाइम वेट करके देन फिर रिवीजन, फिर पीवाईक्यू, फिर रिवीजन, फिर पीवाईक्यू, राइट? देखो, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना कि जैसे कोई एक सब्जेक्ट तुम कर रहे हो, तो अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो उसके बीच में पीवाईक्यू मत सॉल्व किया करो. उसके बीच में तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो. बट कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद तुम पीवाईक्यू जम किया करो, ताकि तुम्हारा उससे ना, जैसे तुम अगर जैसे टीओसी कंप्लीट किया, टीओसी के बाद तुम कंपाइलर करते हो, ठीक है. तो कम जब तुम कंपाइलर पे जम करोगे, तो जब कंपाइलर तुम पढ़ रहे हो तो उस समय तुम टीओसी के पीवाईक्यू सॉल्व करो. तो उससे तुम्हारा रिवीजन भी होगा पीछेगा. तुम दोबारा खोल के अपने लेक्चर भी देखो, दोबारा खोल के अपनी कॉपी भी देखोगे कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है. ठीक है. तो ये बहुत मतलब अच्छी स्ट्रेटेजी है. मैं यही यही फॉलो करता था. टॉपिक खत्म होने के बाद उसके पीवाईक्यू नहीं लगा? नहीं नहीं, टॉपिक खत्म होने के बाद नहीं, उसके जब पूरा, क्योंकि देखो लास्ट 15 मिनट उठा के देखोगे तो कोई भी सब्जेक्ट का मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, 50-60 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे. हाँ, है ना. 50 मिनट है। तो 50-60 क्वेश्चन मतलब तुम चाहो तो 4-5 दिन में इजी सॉल्व कर सकते हो, 10 क्वेश्चन अगर डेली करोगे तो. है ना. भैया सम टाइम रिवीजन में जैसे आपने कहा ना, कभी कभी मैं चीजें भूल जाता था, तो वो मेरे हम्म, साथ लेक्चर के टाइम ही होता है। अगर मैं किसी मॉड्यूल को लाइक 4 घंटे का ड्यूरेशन है उस लेक्चर्स का, तो मैं सोचती हूँ कि एक ही, अभी ना वैसे मेरा इंटर्नशिप चल रहा है तो मैं बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ। मेरा डे हम्म, का मतलब 6 से 7 घंटा इंटर्नशिप ऑफिस में चला जाता है और बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ ना। तो मैं सोचती हूँ कि रात में लेक्चर्स कवर कर लूँ और दिन में उसके नोट्स से रिविजन कर लूँ। बट लेक्चर देखते देखते कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि सर जो बोल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब सर क्या बोल रहे हैं वो दिमाग में ही नहीं जाता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करें? अच्छा, दिमाग में नहीं आता. तो मतलब क्या कहते हैं नहीं कि लेक्चर मत देखो थोड़े थोड़े टाइम के लिए. नहीं, मतलब समझ में आता है लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ पीछे से कि सर बता रहे वो समझ में आ रहा है, लेकिन इससे पहले सर ने वो बताया था, ऐसा कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा। अभी वो होता है यार, मतलब वो मतलब नॉर्मल है, क्योंकि ना जानते हो जैसे लेक्चर देखते तो थोड़ा बोरिंग भी होता है बीच में. फिर वो मतलब हो जाते हैं कि कहीं कहीं और कुछ और सोचने लगते हैं, फिर से लेक्चर खाते हैं तो बोलते हैं क्या पढ़ा सर ने, तो थोड़ा बैक करके फिर से देखते हैं दोबारा लेक्चर. तो वो चीज़ें हाँ नॉर्मल है. वही। उतना 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 स्ट्रेस तो नहीं लेना ऐसी चाहिए किसी चीज़ सिचुएशन का. में क्या आप दोबारा लेक्चर देखते थे या फिर सिर्फ नोट से कर थोड़ा लेते थे? तो 2-3 मिनट पीछे भाग के देख लेना था मैं कि क्या कहते हैं, क्या क्या छूट गया है, क्या क्या नहीं छूटा है. तो ऐसा इतना कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब चीज़ें नॉर्मल है, मतलब दिक्कत नहीं है. भाई आपकी सिलेबस कब तक खत्म हो रही थी?
मेरा सिलेबस खत्म हुआ था नवंबर तक, मिड नवंबर तक, 15-16 नवंबर तक। तो नवंबर तक खत्म होगा तो मतलब परफेक्ट टाइमिंग है नवंबर में खत्म होना। नहीं नहीं, मैं बोलूंगा अक्टूबर तक खत्म करो, क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि जैसे मेरा मेरा टारगेट देखो अक्टूबर ही तक था, बट वो 10-15 दिन मतलब मेरा एक्स्ट्रा चला गया था, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्टूबर तक टारगेट रखो, ताकि तुम्हारा बहुत एक्सटेंड हो तो एक हफ्ता एक्सटेंड हो जाए, तो तुम 5-7 नवंबर तक कंप्लीट कर लो, उससे ऊपर नहीं, कि 2 2 महीने लगेंगे तुमको कम से कम। मेरे को 50 से 60 दिन, 50-55 दिन लग गए थे पूरा सिलेबस रिवाइज करने में पहली बार। फिर दोबारा तो मतलब जल्दी जल्दी होता है, लेकिन पहली बार रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक थे जिसको आपने छोड़ा था, हाँ, लाइक ये बहुत से सोच। टॉपिक थे। क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट में छोड़ के गया था, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में पूरा मतलब पूरा ही नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत मतलब आधा से ज्यादा छोड़ा था। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हाँ, टीओसी में जो तुम्हारा वो काउंटेबिलिटी है, मैं काउंटेबिलिटी पूरा छोड़ के गया था। तो ऐसे टॉपिक्स हैं मतलब जो कि मतलब छोड़ के गया था, मैं भी छोड़ के गया था, और मेरा एक सिक्वेंशियल सर्किट क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, मैं पेपर में छोड़ के आया था। तो ऐसा कोई ऐसे 100% 100% सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम भी जब तुम पढ़ते 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 जाओगे ना, आगे टाइम जब तुम्हारा आएगा ना, तुम भी सोचोगे कि एक तो टॉपिक बचा हुआ है, उसको छोड़ देता है। तो अगर तुमको लगता है कोई टॉपिक की जो मतलब कि लेस प्रायोरिटी है, तो उसको तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी नहीं छोड़ना है, वो आखिरी टाइम का है। ठीक है। मतलब लैक ऑफ टाइमिंग की वजह से आपने छोड़ा था, ऐसा नहीं है ना कि हाँ, जैसे समझ नहीं आ रहा है तो आपने छोड़ दिया, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। नहीं मतलब देखो देखो, सबसे ज्यादा मेरे को सही बताओ तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी जो टीओसी का वो वाला पार्ट है ना, क्या बोलते हैं, डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी और काउंटेबिलिटी भी। तो काउंटेबिलिटी में पढ़ने की ट्राई किया, तो मुझे स्टार्टिंग में समझ चीजें नहीं आई, तो मैं सोचा कि इसमें टाइम वेस्ट करना कोई फायदा नहीं, तो मैं उस टॉपिक को छोड़ दिया, पूरा टोटली छोड़ दिया। ठीक है। और बाकी जितने भी टॉपिक्स है ना सारे, मतलब कि तुम देखोगे तो ऐसा ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं कि जो तुमको समझ में ना आने वाला हो। ठीक है। तुमको कोई फील हुआ कि ऐसा टॉपिक कोई है कि जो तुमको समझ में ना आ रहा हो? हाँ। हाँ, मुझे ऐसा मतलब मैं डीएस अभी कर रही हूँ, थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं फंस रही हूँ, सारे क्वेश्चन के मुझसे नहीं हो रहे, मतलब अच्छा, कर रही हूँ बट गलत हो जा रही हूँ, मैं स्टेप भूल जा रही हूँ, या मतलब वो नहीं हो पा रही, मैंने बहुत ट्राई किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उसे छोड़ देना चाहिए, उसने मेरा बहुत टाइम खा लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली जानते हो क्या है, देखो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं पहले ना सीपी करता था, तो मुझे ये सब चीजें मतलब मेरे अंदर पहले से ही थी। मैं डीएसए और एल्गोरिथम में टाइम ही नहीं दिया था, मुझे पता था कि मेरा वो फेवरेट है, मुझे टाइम नहीं देना है। तो ये सब चीजें मेरे से पहले से ही थी। हालांकि क्या कहते हैं कि जो लूप्स वाले क्वेश्चन होते थे जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होता है, वो अगर तुम एनालाइज करोगे ना, तो उसमें देखोगे ना, तो मेरा एक सेट ऑफ मतलब एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ही है कि या तो लूप के अंदर लूप रहेगा, या तो लूप के अंदर मतलब कि आई आई इंटू टू मतलब ऐसे से बढ़ेगा, या तो आई इंटू 3 बढ़ेगा, तो उसमें लॉग लगाना है। तो मतलब ऐसे देखोगे ना, तो एक तुम पैटर्न बनाओगे ना क्वेश्चन का, तो एक सेट ऑफ पैटर्न ही होगा क्वेश्चन का, कि चार 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 पांच टाइप के पैटर्न क्वेश्चन है, बस उसी उसी को तुमको सॉल्व करना है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है उसमें। हाँ, वो पैटर्न तो मुझे समझ आ गई, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसके वजह से ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, फिर मैं घूम फिर के उसी टॉपिक में जा रही हूँ, और उसके हम्म। रिवीजन प्रैक्टिस में टाइम मेरा चला जा रहा, तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो ठीक है, तो मतलब तुम अभी के लिए उसको छोड़ दो, तो दोबारा फिर से ट्राई करना उसको कुछ टाइम बाद। लेकिन अभी जैसे अपना सिलेबस कवरेज पे भी तो उतना इक्वली अपना भी क्या कहते हैं इसको, अभी टाइम दो, ताकि तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। थैंक यू भैया। ठीक है। वन डाउट one doubt regarding how revision strategy apply in the months wise. Can you suggest me? In the month wise revision strategy, I did not understand your question. Can you please elaborate it? हेलो भैया, अभी मेरा जो मैक्सिमम लीनियर अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी पड़ गया है मेरा। हाँ हाँ। अब इसका रिवीजन कैसे करेंगे? जैसे प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम्म। ट्रिकिंग, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं, स्टेटिस्टिक पार्ट वाला, उसमें बहुत सारा मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है। अच्छा, ये सब मतलब जैसे कि ये तुम नॉर्मल डिस्कशन की बात कर रहे हो क्या? मतलब मैं टॉपिक भूल चुका हूँ, मतलब जो तुम टॉपिक बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी, फिर से बोलना, कौन कौन सा टॉपिक बोला तुमने? जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो देखो उसमें तो जैसे कि तुमको पता है कि शायद इसमें डायरेक्ट फार्मूला सर ने शायद बताया है कि डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, कि प्रूफ प्रूफ बताया है? हाँ, वो बताए सर ने। अच्छा, प्रूफ बताया है। तो डीए की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या तुम? हाँ, डीए की।
तभी मतलब ये टॉपिक शायद सीएससी में नहीं है। तो इसका हम लोग ने प्रूफ नहीं पढ़ा है। क्या कहते हैं, हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम उसको डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज करना है। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि देखो, मैथमेटिक्स पूरा प्योर मतलब प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है। तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तुमको टॉपिक उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम थोड़ा और क्वेश्चन लगा लो, जैसे कि अगर तुमको लग रहा है कोई टॉपिक अगर तुम्हारा वीक है, से स्टैटिक्स तुम्हारा वीक है, तुम उसे थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सर मैंने मतलब 2 के 3 रिसोर्सेज से मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो ठीक है? हम्म। हाँ देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन मतलब जितने जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन लगाओ उतने उतने अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको बस ये नहीं कहता कि भाई तुम गो क्लासेस तक ही लिमिटेड रहो। अगर तुमको कहीं और रिसोर्स से भी अगर तुमको क्वेश्चन मिल रहा है ना, तुम वहां से भी लगाओ। हाँ। एंड मुझको रिवीजन स्ट्रेटजी बता सकते हो आप? अभी मेरा 2 सब्जेक्ट पढ़ गया है एंड एआई पढ़ हम्म। गया है मेरा। अभी कैसे हम्म। रिवीजन स्ट्रेटजी अप्लाई करें उसके अंदर? देखो, रिवीजन स्ट्रेटजी सबसे पहले तुम ना पीवाईक्यू लगा लिया आप दोनों सब्जेक्ट पीवाईक्यू का। लगा लिया? पीवाईक्यू लगा दिया। तो फिर तो क्या कर सकते हो कि जैसे तुम एक पर्टिकुलर दिन, जैसे अगर तुमको फील होता है तो हर एक 15 दिन में एक दिन ऐसा ऐसा तुम दे दो, ताकि तुम पूरा का पूरा दिन रिवाइज ही कर रहे हो, पूरा का पूरा जितना पीछे का पढ़ा हुआ है, ठीक है। हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो, ताकि तुम पीछे का पूरा रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो तुमको पता चलेगा कि तब क्या क्या तुम्हारा मतलब तुम भूल रहे हो, और क्या क्या तुमको दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। ओके। एंड अभी मैं जैसे कि डेटा साइंस में डीसी मैथमेटिक्स जो पार्ट्स है ना, वो भी मैं कर रहा हूँ। हम्म। एंड उसमें जो लास्ट के कॉम्बिनेटरी पार्ट्स है ना, जैसे कि पिजन होल्स एंड हाँ रिकर्सन रिलेशन, उसमें थोड़ी दिक्कत हाँ। पड़ रही देखो, जैसे जो पिजन प्रिंसिपल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो तुमको फील नहीं होंगे कि यार ये पिजन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मेरा भी एक क्वेश्चन आया था, वो मुझे बस पता नहीं कैसे क्लिक कर गया। मैं तुमको सही बताऊं तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है पिजन प्रिंसिपल पे, लेकिन पता नहीं कैसे क्लिक कर गया, मेरा सॉल्व हो गया। बट जो उसके क्वेश्चन होते हैं ना, वो तुमको फील नहीं होगा कि वो क्वेश्चन पिजन होल का ही है। तो तुमको सॉल्व करोगे, तुमको तुमको पता चल रहा होगा, है ना। है। तो एंड तो हाँ बताओ। अभी मैंने 2 टेस्ट सीरीज लेके रखी है, गो क्लासेस की एंड एक डीओ एम एल करके, मतलब टाई आई करके टेस्ट सीरीज है गो क्लास, और टाई आई की टेस्ट सीरीज है। वो दो टेस्ट हम्म। सीरीज में लेके रखी है। एंड अभी मेरी हम्म। पहले गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज खत्म कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में हाँ मैं हाँ। दूसरी टेस्ट सीरीज यूज़ करता हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं यार। मैं तुमको एक चीज बता दूं, जैसे तुम जितना भी टेस्ट सीरीज ले लो ना, तुम पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज एक टेस्ट सीरीज से ज्यादा लगा ही नहीं पाओगे। तुम हम्म। देख लेना। मैंने भी 2 लेकर रखा था, एक गोकुल से लेकर रखा था, एक किसी और प्लेटफॉर्म में लेकर रखा था। तो मैं भी मतलब जो दूसरा प्लेटफॉर्म था ना, मैं मतलब उसका पूरा टेस्ट सीरीज मतलब क्वेश्चन लगा ही नहीं पाया। और हालांकि गो क्लास के पूरा नहीं लगा पाया था, मतलब जैसे जितना भी मॉक्स होगा, मुझे लगता है कि मैं हफ्ते में 2 मॉक्स देता था। वो भी अपना जब मेरा नवंबर के बाद मैं हफ्ते में 2 मॉक्स देता था। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 21-22 मॉक्स मैंने दिए, ठीक है। तो तुम पूरा क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो लेकिन हाँ, तुमको जैसे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाने के लिए तुम डिफरेंट टेस्ट ट्राई कर सकते हो। लेकिन गो क्लास के जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब अभी बता रहा हूँ कि जो गो क्लास के जो क्वेश्चन है, वो तुमको भले टफ लगेगा, तुमको लगेगा कि ये मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है, इतने लेवल क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं। बट जब तुम हार्ड क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो जब तुम इजी क्वेश्चन लगाओगे, तो वो पीस पीस ऑफ पीक लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है ना। मैं मेरा जो 25 अराउंड मेरा 17 मार्क्स आ रहे हैं ट्वेंटी हाँ फाइव हाँ। में से। हाँ हाँ। एंड कैसे इम्प्रूव कर बहुत सकते हो बढ़िया भाई। भाई 17 मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छा है यार। मतलब मैं तुमको सही बताऊँ तो सीरियसली बता रहा हूँ, 25 में जाकर तुम 17 मार्क्स ला रहे हो तो बहुत अच्छा है, तो एंड मोस्ट प्रिपरेशन ऑफ अच्छा चल रहा सिली है। मिस्टेक में जा रहे हैं। हाँ, तो सिली मिस्टेक के लिए तुम क्या कर सकते हो ना, एक छोटा सा बुक बनाओ, ठीक है। मैं ये क्या करता था, एक छोटा सा बुक बनाता था। जितना भी मेरा सिली मिस्टेक होता है ना, तो मैं उसको एक बार लिख लिख लेता था। तो जब भी मैं कोई नया टेस्ट देने जा रहा हूँ, तो मैं उस सिली मिस्टेक को सारे पढ़ लेता था कि मुझे ये सारे सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं पेपर में। तो फिर वो याद रहता था कि मैंने ये गलती की है, अब ये नहीं गलतियां नहीं करनी। तो तुम ऐसे करोगे, तुम्हारा सिली मिस्टेक बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा फिर। ओके ओके, थैंक यू। Tejas. Hi Chiranjeev, congratulations on the great line. I am currently working as a developer at a startup and can usually manage 1 2 hours reading bits and 3 4 hours after work. I already have basics foundation in most of the subject and I'm targeting top 100 rank. I had few questions after completing the topic. Did you immediately do PYQ quiz topic wise, or did you spread some of them out and use them later for the revision while studying subsequent topics? Also, did you keep
the daily targets, such as solving minimum number of questions every day, or focus mainly on completing topics? And for the PVQs, would you recommend attempting them in test-like environment, or I often spend too much time for individual questions? So I am wondering whether to use Gate Overflow new PYQ test mode would you be better, or if solving them normally and reviewing the solution alongside is the good way. See, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ना कि I would say I would recommend you to don't treat the PYQs as a normal question. Analyze it carefully. It will take time. Give your time. Give your enough time in the PYQs, and try to solve every PYQ in a depth manner, so that, because at the end of the day, in the original paper also, you have to solve the questions like the PYQs. Questions like PYQ you have to solve in the test also, in the gate also. So those are your ultimate set of questions. And the giving the topic based test and the mock test, these are just the normal questions. Treat them like a practice question. You can give these questions. You can solve these questions in between any in between watching your lectures, in between your preparation. But after you complete any particular subject, you should after that only you should solve the PPQs and all. And what other thing? I have few questions. After completing topic, did you immediately solve them? Yes, after, not after solving any particular topic, I used to solve PYQs. I used to solve PYQ after completing a whole subject. And topic wise test and weekly quizzes I used to give in between my subject lectures. Means after completing any particular topic or any lecture, I used to give some mock tests. Sorry, I used to give some topic wise tests. Previously, you said that we should complete syllabus by October. Did you mean like only theory plus topic wise test, or theory plus topic wise plus all mocks and PYQs? Uh, Theory plus topic wise test plus PYQ. In your during your preparation, use means during completing your syllabus, till I think I would recommend you ki when you will while completing your syllabus, you should solve PYQ for the first time, means at least one time. And after completing your syllabus, you should solve the PYQ, same PYQ again. So theory plus topic wise test plus PYQ till November. Okay. So if anybody else want to ask some other question, we can ask. Unmute yourself and you can ask. हेलो भैया। इसमें हाँ, हेलो। भैया जैसे लाइक नोट्स कैसे बनाओ? लेक्चर देखते टाइम बनाओ, या लेक्चर कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद बनाओ, या 3-4 लेक्चर देखने के बाद बनाओ, या किस टाइप से नोट लेक्चर बनाओ? लेक्चर के टाइम ही बनाओ कि जैसे कि मतलब अगर तुमको नोट्स होते मतलब ज्यादा पूरी पूरे अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बनाने हैं, तुम 10-15 मिनट पहले लेक्चर देखो, फिर उसके बाद फिर तुम नोट्स बनाओ, फिर 10-15 मिनट लेक्चर देखो, फिर नोट्स बनाओ। कि तुम बस लिखते जाओ कि जैसे जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को लिखो, और उसके बाद जैसे कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला लिख दो। या फिर तुमको जैसे पूरा प्रूफ मत लिखो, ठीक है? कोई कोई एक टॉप फॉर्मूला है, उसका प्रूफ है, तो उसका फॉर्मूला का पूरा प्रूफ मत लिखो, बस खाली फॉर्मूला लिख लो। और फिर तुमने उस टॉपिक से क्या है वो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, ताकि तुम इजीली रिलेट कर पाओ जब तुम रिवीजन करो। ठीक है? ओके, मतलब भैया पॉज कर करके, जैसे फिर अगर लेक्चर के टाइम पॉज कर दूं जहाँ लग रहा है मुझे, फिर हाँ नोट कर दूं। ठीक हाँ है। हाँ, वैसे। ओके भैया। ओके भैया, थैंक अरिजीत। हेलो। हाय, एक्चुअली मेरे को ये पूछना है कि लेट हम्म, सपोज मैंने थियोरी पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, हम्म, मतलब पूरा डीए का जितना भी है पीडीएस है, फिर उसके बाद मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना है गेट टाइप क्वेश्चंस का, तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए शुरुआत से? आपने बोला कि टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट मतलब बेसिक क्वेश्चन है उसमें, उसको ज़्यादा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर उसके हम्म। बाद क्या है, मतलब उसके बाद? जैसे मेरा कहने का मतलब ये था ना कि जैसे अ, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट जो होता है ना, वो आप मतलब एक एग्जाम इन्वायरमेंट में दे सकते हो, ठीक है?
लेकिन जो पीवाईक्यूज होते हैं उसको आप एग्जाम इन्वायरमेंट मत दो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि उसको आप टाइम दो। जैसे कोई क्वेश्चन है आपसे अगर नहीं बन रहा है तो उसको पहले खुद से एक बार, जैसे पीवाईक्यू कोई है, उसको पहले खुद से एक बार दो बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद तुम आप उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है। मतलब उसके तरीके देखो कि क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। तो मतलब रिवीजन करना ही चाहिए। और मतलब एक चीज मुझे थोड़ा ये भी क्लैरिफाई करना है कि हम्म, हम लोग अगर रिवीजन कर रहे हैं कोई हम्म, जो प्रॉब्लम्स का, तो इससे मतलब गेट एग्जाम में वैसे ही टाइप का, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिमिलर और सेम क्वेश्चन आएगा, मतलब हाँ कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट उसी का आएगा, ये आप बोल रहे हो है ना? हाँ, मतलब ये कोर आपका कॉन्सेप्ट है। ऑब्जर्वेशन है। हाँ हाँ। जैसे हो सकता है कि जैसे ना, जैसे देखोगे आप ना तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 20% क्वेश्चन तो मतलब लगभग सेम ही आते हैं, क्योंकि बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा या कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएगी पीवाईक्यू से। ठीक है। लेकिन जो थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे ऐसे रहेंगे ना कि उसके कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस उसका पूछने का तरीका अलग होगा। कि जैसे कि हम्म। कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठाओगे किसी भी टॉपिक का, तो हो सकता है कि उसमें कुछ पहले कुछ पीवाईक्यू में कुछ और पूछा हो और इस बार कुछ और पूछ रहा हो, सेम क्वेश्चन का डिफरेंट एक्सपेक्ट पूछ रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत इजी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व 50% ऑफ द पेपर। मतलब मैं क्या बोल रहा था कि गेट डीए तो नया नया अभी स्टार्ट हुआ है, तो हाँ, गेट डीए उसका नया नया है। तो तो उसका जो पीवाई क्यू है, जो सीएससी वाला पार्ट है उसका, है ना, तो हम्म, उससे अगर मैं प्रिपेयर करूं तो बेटर होगा नहीं? मतलब मैं हाँ, सजेस्ट पूछ रहा। जैसे आई थिंक 7 सब्जेक्ट कॉमन है ना दोनों में, सीएससी और डीए में। तो आप जितने 7 सब्जेक्ट है फाइव उसके फाइव पीवाईक्यू लगा सब्जेक्ट्स का। सकते हो। 5 सब्जेक्ट कॉमन है। तो हम्म। आप जितने भी कॉमन सब्जेक्ट है उसके पीवाईक्यू लगा सकते हो। हम्म। तो उससे आपको क्या कहते हैं कि उतना उतना आप प्रिपेयर कर लोगे बड़ी इजीली। ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल था। थैंक यू। रिगार्डिंग शॉर्ट नोट, इज इट मैंडेटरी? शॉर्ट नोट मैंडेटरी तो नहीं होता है। मतलब it is not mandatory to maintain a short note, but I would recommend you to maintain a short notebook of your silly mistakes and uh, other some questions also, because there are few questions that are like that ki you are not able to solve frequently, means that you are not able to solve again and again. Like if some questions comes for the first time, you are not able to solve that question. Second time also you are not able to solve the same question. Third time also you are not able to solve the same question. So same question you are not getting it. So what you can do, you can write those type of question in your short notes, and you should revise those questions again and again, so that uh, those questions are important, and those questions can come in the exam also, and you should be able to solve those questions. भैया आप रोज पर डे एवरेज कितना आवर्स पढ़ते थे? यार मैंने बता चुका यार कि 5-6 घंटे ऑलमोस्ट। 5-6 घंटे पढ़ता था भाई, ज्यादा नहीं पढ़ता था। Minimum number of problems you need to solve in a day, or you would recommend to keep up with the problem solving skills? ऐसा कोई मेरा टारगेट नहीं हुआ करता था कि मुझे इतना क्वेश्चन से डेली सॉल्व करना ही है। मेरा मेन टारगेट ये रहता था कि जैसे अगर कोई मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उस टॉपिक के बाद उसका कम से कम एक टॉपिक वाइज टेस्ट तो मुझे देना ही था। तो बस मेरा फोकस ये रहता था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर कि मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स का एक क्वेश्चन तो मतलब एक टॉपिक वाइज टेस्ट तो देना ही है। थैंक्स भैया, मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अनुज। अगले साल भाई तुम लोग अच्छे से मेहनत करो भाई, अगले साल मिलते हैं यार आईएससी में। और अगले साल आईएससी। चलो भाई, मिलते हैं फिर। मस्त प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, मजे मारो।